Good afternoon, students, and welcome to this another session of accounts. Today, we will be taking up question of NPO of the paper March 2020. So, we have done up with all our regular sum. Now, we are taking up previous year question from the chapter NPO, not for profit organization. Divya Library, Buldana showed the following position of their accounting. Consider the adjustment given and prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2016. So we are concerned with the year 15, 16 and a balance sheet. We are given the opening balances, that is last year closing balance become this year opening balances. Capital fund, expenses due, furniture, books, investment in securities, cash and bank balances. Also, we are given receipt and payment account for the year ending 31st March 2016, that is for the year 15-16. Opening cash balance and bank balance, membership subscription, entrance fees, sale of scrap, hire of lecture hall, interest on securities, electricity charges, postage, book purchased, payment for expenses due, sundry expenses, investment in securities, furniture, cash in hand and cash at bank. During the year ending, furniture was purchased on 1st October 2015. So this furniture was purchased on 1st October 2015. Depreciate furniture by 10%. So we have opening balance of furniture. This opening balance was used for full year. So on this full 12 months depreciation will be charged, and year furniture given year was purchased on 1st October. So October, November, December, January, February, March. On this purchase, 6 months depreciation will be charged at a rate of 10%. Depreciate books by 50,000. So what all books are there, you have to depreciate it by 50,000. Opening balances of books is given. In this opening balance, we will add book purchase during the year, and from the total we will subtract 50,000 depreciation given. Membership subscription received during the year includes 7,500 for the year 16-17. We are making account for the year 15-16. We are making account for the year 15-16. So 16-17 is the next year. It means the coming year. अगले साल के लिए अपने को 7,500 रुपया मिला, तो जो अपने को मिला है ना, ये सब्सक्रिप्शन अपने को इस साल मिला है, इसमें से अगले साल के लिए आपको कितना मिला है? अगले साल के लिए आपको 7,500 रुपया मिला है. तो इस साल की इनकम में केवल इस साल की इनकम दिखाते हैं. तो 90,000 जो आपको मिला है ना, उसमें से 7,500 रुपया आपको अगले साल के लिए मिला है, इसको माइनस कर देंगे. 3,750 आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर. 3,750 रुपया मिलना बाकी है. आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना बाकी है. तो जो मिलना बाकी है लेकिन वो इस साल की इनकम है, उसको इसके अंदर जोड़ देंगे. तो ये एक एडजस्टमेंट है. उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4, कैपिटलाइज हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस. तो ये जो एंट्रेंस फीस आपको मिली है, इसमें से आधी आपको क्या करनी है? कैपिटलाइज करनी है. इसका मतलब आधी को आप रेवेन्यू इनकम ट्रीट कर सकते हैं. कैसे करेंगे ये 1 by 1 अपन देखेंगे. जो चारों एडजस्टमेंट अपन ने देख लिए हैं, अब अपन सम करने को चलते हैं अपनी एक्सेल शीट में. पहले अपन रिसीप्ट साइड को देखते हैं. ओपनिंग बैलेंसेस का अपन कुछ भी नहीं करेंगे. फिर आपको मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन. देखिए ऊपर आपने लिख लिया इन द बुक्स ऑफ दिव्या लाइब्रेरी बुल्दाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March.
आपको मिला है 90,000 रुपया। कितना मिला है? 90,000 रुपया। ये आपने हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब इसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट अपन देखते हैं पॉइंट नंबर 3। ये बोलता है 7,500 रुपया आपको नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए मिला है, कमिंग ईयर के लिए मिला है। तो ये इस साल की इनकम नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? लेस रिसीव्ड फॉर द ईयर 16-17 कितना है? 7,500 रुपया। आपको इसमें से 7,500 रुपया माइनस करना होगा। अब नेक्स्ट आपको जो बताता है इतना मिलना बाकी है, तो जो मिलना बाकी है ना उसको आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ये आपकी इस साल की इनकम है, लेकिन आपको मिली नहीं है। कितना है? 3,750। आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई? दिस प्लस दिस। टोटल इनकम आपकी इस साल की 86,250 हो गई। अब जो ये एडजस्टमेंट में दे रखा है ना, ये आपका दो जगह जाता है। तो एक तो आपका एडवांस में मिला है, जो एडवांस में मिला है वो अपनी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी होती है। आप लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना है आपका? 7,500 रुपया। ये आपको एडवांस में मिला है। और एक आपका आउटस्टैंडिंग है। जो आउटस्टैंडिंग है वो आपका क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यह आपका असेट है। 3,750, 3,750। तो इस तरीके से पॉइंट नंबर 3 को अपन ने एड्रेस करा है। अब है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस 12,500 रुपया कितनी है? एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस ये क्या है? 12,500 रुपया। इसमें से पॉइंट नंबर 4 बोलता है, पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि आपको 50% को हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। तो आदि को आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, लेस कैपिटलाइज। 12,500 का आधा कितना होता है बच्चों? 6,250 इज इक्वल टू 12,500 इंटू 50%। ये आपका 6,250 आप कहां पे करोगे? कैपिटल फंड में ट्रांसफर करोगे और 6,250 आप इनकम में बता दोगे। तो इसको कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है ये देखना होगा। ये आपका ओपनिंग फंड ये दे रखा है 3,45,000। 3,45,000। इसमें आपका क्या है? एंट्रेंस फीस को आपको कैपिटलाइज करना। ऐड एंट्रेंस फीस, ये 6,250 रुपये आपने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें हो गई। अब है सेल ऑफ स्क्रैप। जो आपका थोड़ा भंगार होता है ना उसको स्क्रैप बोलते हैं। तो सेल ऑफ स्क्रैप आपका क्या है? रेवेन्यू इनकम है। क्या है? रेवेन्यू इनकम है बाय सेल ऑफ स्क्रैप। क्या आपका रेवेन्यू इनकम है? 750 रुपया। हायर ऑफ लेक्चर हॉल बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल। हायर ऑफ लेक्चर हॉल ये आपका क्या है? 9,000 रुपया। कितना है? 9,000 रुपया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन बाय इंटरेस्ट ऑन फीस, ये आपका 2,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है। अपन ने रिसीप्ट साइड की सारी चीजें लिख दी है। अब अपन पेमेंट साइड में चलते हैं। सबसे पहले है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,490 टू चार्जेस 3,490 अपन यहाँ पे लिख देते हैं 3,490।
उसके बाद क्या है अपना पोस्टेज 3050 टू पोस्टेज 3050 आपका पोस्टेज है 3050 आपका पोस्टेज है। पोस्टेज के बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या है बुक्स। तो बुक्स को अपन ये बुक परचेज है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। अपन ओपनिंग बैलेंस ऑफ बुक देखते हैं और इसको बैलेंस शीट में लिखते हैं बुक्स। बुक्स आपका कितना है, ओपनिंग बैलेंस देखते हैं बुक्स का। बुक्स आपका 275,500 275,500 एड परचेज कितना है परचेस्ड आपका बुक परचेज 40,000 बुक परचेज। अब है डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर आपका पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है 50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो लेस 50,000 आपका डेप्रिसिएशन कितना हुआ इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये आपका बुक्स की वैल्यू आ गई और डेप्रिसिएशन आपका लॉस है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स आपका 50,000। नेक्स्ट बुक्स के बाद आपका पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस ड्यू, इसको जरा अपन अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, शुरू में आपको दे रखा है एक्सपेंसेस 3,500 रुपया बाकी थे और 3,500 का पेमेंट हो गया। 3,500 शुरू में बाकी थे, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखा है आपको 3,500 रुपया बाकी थे और 3,500 का पेमेंट रिसीट एंड पेमेंट में वो बोलता है हो गया। अगर 3,500 बाकी होते और रिसिप्ट एंड पेमेंट में केवल 2,500 रुपया दे रखा होता तो 1,000 रुपया बाकी होता। 1,000 रुपया बाकी कहां पे आता है, बैलेंस शीट में आता पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस ड्यू 1,000 रुपया। 3,500 बाकी थे और 3,500 का पेमेंट हो गया तो कहीं पे कुछ भी नहीं जाएगा। होप द मैटर इज क्लियर। वापस एक बार बता देता हूं, शुरू में दे रखा है 3,500 रुपया बाकी था और 3,500 का पेमेंट हो गया तो अकाउंट सेटल, कहीं पे कुछ भी मेंशन नहीं होगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,250 ये आपके एक्सपेंडिचर में जाएगा। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,250। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। शुरू में आपका इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 25,000 है, तो आप बैलेंस शीट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 25,000 रुपया। 25,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है। साल के बीच में आपने कितना, साल में के शुरू में या बीच में आपने कितना परचेस करा, एट परचेस्ड कितना परचेस करा आपने, आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट में दे रखा है आपने 50,000 की सिक्योरिटीज परचेस करी, तो टोटल आपके पास सिक्योरिटीज कितनी हो गई, 75,000 की हो गई। ये आपने बैलेंस शीट में बता दिया। उसके बाद साल के बीच में आपने फर्नीचर परचेज किया 14,000 रुपए का। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर। अपन को देखना होगा शुरू में अपने पास कितना फर्नीचर था, तो फर्नीचर शुरू में कितना था ये अपन देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस में फर्नीचर आपके पास 36,250 ये आपको दे रखा है ना, शुरू में आपके पास इतना था। आपने बीच में परचेज किया है एट परचेज 14,000 रुपए का परचेज किया है।
देखिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। 36 to 50 और 14,000 का बीच में परचेस करा है। 36,000 आपके पास शुरू में था, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा, तो ये हो गया इज इक्वल टू दिस इंटू 10/100। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितना हो गया 3625। और जो 14,000 था ये आपने 6 महीने के लिए यूज किया। कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, तो इंटू 10/100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। तो इसके ऊपर 14,000 के ऊपर 10% का 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 महीने का डेप्रिसिएशन 700 रुपए का। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, आपके पास कितना आएगा 4325 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, कितना है इतना। और अब आप लेस डेप्रिसिएशन 4325, तो ये आपके पास हो जाएगा दिस माइनस दिस। और 4325 आप कहां पे लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4325। वापस आपको बता देता हूं ये डेप्रिसिएशन कैसे आया, ये आपको पता पड़ा इस अमाउंट के ऊपर पूरे साल भर का और इस अमाउंट के ऊपर 6 महीने का। तो 6 महीने का इतना हुआ, साल भर का इतना हुआ, इन दोनों का टोटल करेंगे तो इतना आया। टोटल फर्नीचर में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो फर्नीचर की नेट वैल्यू इतनी आ गई। और ये जो फर्नीचर डेप्रिसिएशन है ना, तो इस डेप्रिसिएशन को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी हो गया। उसके बाद आपका कैश और बैंक बैलेंस, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, कैश इन हैंड। और ये आपका बैलेंस शीट में कैश और बैंक। कैश आपका कितना है और बैंक कितना है, कैश आपका 3,250, 3,200 है, 3,210 और 3,500। तो ये आपका सारी चीजें हो गई, पहला एडजस्टमेंट भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया और चौथा भी हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अपन इनकम साइड की टोटल कर लेते हैं। ये आपने सब आउटर कॉलम में लिख लिया। इनकम साइड की टोटल आपकी 1,04,250 आती है। कितनी आती है, 1,04,250। अब अपन क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड की टोटल करते हैं। एक्सपेंडिचर साइड की टोटल आपकी 66,115। इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, तो आपका क्या है, सरप्लस है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, आपका कितना आता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करा 38,135। तो इसको क्या बोलते हैं, 38,135। ये आपका क्या है, सरप्लस है। ये आपका क्या है, टू सरप्लस। ये 1,04,250, ये टोटल और ये भी टोटल। इसको आप डिलीट कर देते हैं और सरप्लस को आप कहां पे ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में। ऐड सरप्लस 38,135। इन तीनों की टोटल को आउटर कॉलम में लिख देंगे। इन तीनों की टोटल को आउटर कॉलम में लिखा, ये आपका 389,385 आता है। अब अपन क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड की टोटल करते हैं 396,885। 396,885। उसी तरीके से अपन ने ये सब आउटर कॉलम में लिख लिए। अब अपन असेट साइड की टोटल करते हैं।
साइड की टोटल भी आपकी 396,885 आती है। तो इस तरीके से आपने देखा बैलेंस शीट की टोटल आपकी आसानी के साथ मिल गई, कहीं कोई झंझट नहीं। बस आप ये ध्यान रखिएगा, हाथों हाथ ही सारे के सारे इफेक्ट देते जाइए और अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करके काम करते जाइए। एक बार वापस से देखिए, ये ओपनिंग बैलेंसेस है। ये क्या है? आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट को और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को आपको साथ साथ पढ़ना है, दोनों को मिला करके पढ़ना है और साथ में इन एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट भी देना है। और दोनों इफेक्ट जो डबल इफेक्ट होते हैं ना, उनको हाथों हाथ देते जाइए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। सम करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई डिफिकल्टी हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी दे रखे हैं, यहाँ पे लिख के भेजिए। आपकी सारी डिफिकल्टीज का जवाब दिया जा रहा है। और अच्छा तभी लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। शुरू में दिक्कत आएगी आपको, लेकिन 2-3 बार करेंगे, 4-5 सम करेंगे, आपके प्रैक्टिस, ये नई चीज है, आपके प्रैक्टिस में आएगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। तो प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए, प्रैक्टिस करिए और पेरेंट्स की हेल्प करते रहिए। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में बोलता हूं कि देखिए, कोरोना का टाइम है, सबको टेंशन है, सबको परेशानी है, तो जितनी हो सके परिवार की मदद करिए और टेंशन कम दीजिए, पेरेंट्स को उनकी हेल्प करिए। So once again, stay home, stay safe, and thanks for